A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last video of class 12 accountancy, we discussed a lots of the theoretical concept of chapter number 6, that is the dissolution of partnership firm. In this chapter, you know very well, firstly we discussed the journal entries related to the realization account. After that, we discussed the journal entries related to the partner's capital account, partner's loan account, as well as the format of bank account. So after completing a lots of the theoretical topics related to the dissolution of the partnership firm, you can see that we solved the practical question number 1 and practical question number 2 of this chapter. With the help of the first question of the chapter number 6, we develop a better understanding related to the journal entries which will be passed in the different case of the workman compensation reserve. And with the help of the question number 2 of the chapter number 6, we discussed and we develop a better understanding regarding the journal entries related to the different cases of the realization expenses. So after completing the two types of the practical question which will be asked in the examination from the chapter number 6, that is the dissolution of partnership firm, now we are moving to the third type of the practical questions which is very important related to the dissolution of the partnership firm, that is in preparation of realization account, preparation of the partner's capital account, and preparation of the bank account on the dissolution of partnership firm. So without creating delay, let's we discuss the practical question number 4 of your book. The following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2021, and the profit sharing ratio are 3:2. Creditor 97,500, whereas the capital accounts is 85,000 and 63,000, and the total capital of the firm is 1,48,000. On the asset side, land and building 30,000, motor vehicle 18,300, the stock 72,800, data 1,13,200, provision for bad debts 2,450, and cash in bank is 13,650. The partner decide to dissolve the firm on and from the date of the balance sheet. It means immediately firm ने decide किया कि उसे firm को क्या करना है, dissolve करना है. Motor and vehicle and stock were sold for cash 16,950 and 77,600, and all data were realized in full. It means debtor से सारा पैसा realized हो गया. Land and building were sold at 43,500 and creditors were paid off subject to a discount of 1,700. Expense of realization was 1,250. So you know very well, if realization expense will be paid by the firm, or if there is no information about the payment of the realization expense, so we assume that कि realization expense किसने पे किया होगा, पे किया होगा firm ने. So the question is asking to prepare the realization account, partner's capital account, and bank account to close the firms as a result of its dissolution. Means at the time of the dissolution, you know very well, firstly we prepare the realization account. So without creating any delay, let's we prepare the realization account with the help of the given information. And you know very well, when we prepare the realization account of the question number 4 of any question, firstly we prepare the format. And you know very well what is the format of the realization account. Format of the realization account is ditto the revaluation account, that is in particulars amount and particulars amount. And you know very well, firstly we transferred all the assets to the debit side of the realization account, and thereafter we transfer all the asset liabilities in the credit side of the realization. It will be a debit side and it will be a credit side.
So we transfer all the assets like land and building, and the value of the land and building is 30,000. Motor vehicle 18,300. Now stock 72,800. And now the data will be 1,13,200 without provision. And you know very well, if any provision created against any assets, so it will be transferred to the credit side. So डेटर डेबिट साइड ट्रांसफर होगा, बट जो हमने डेटर पे प्रोविजन क्रिएट किया है वो जस्ट अपोजिट ट्रांसफर होगा इन द रियलाइजेशन अकाउंट. So the amount of the debtor is 1,13,200 and where is a provision is 2,450. And the another asset is also given in this question is cash at bank, and you know very well cash at bank is not transferred to the partners, is not transferred to the realization account. It will be write down as a balance PD in the bank account. And if you are talking about the liability side, so liability side में सिर्फ एक आइटम है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिट हो सकती है. इस क्वेश्चन में हमें 97,500 का क्रेडिट, और कोई भी लायबिलिटीज या एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी इस एसेट्स इस क्वेश्चन में. एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल we will discuss about the realization of the assets and the payment of the liabilities. So realized जो assets को ट्रांसफर किए हम डेबिट में, तो उसका रियलाइजेशन किस साइड होगा? क्रेडिट में होगा. उसी तरह से क्रेडिटर्स को हमने राइट डाउन किया है क्रेडिट साइड, तो उसका पेमेंट किस साइड होगा? डेबिट साइड में. चलिए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले रियलाइजेशन के लिए बोला है मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल रियलाइज हुई 19,500, sorry for that, 16,950, and the realization value of stock is 77,600, and thereafter all data were realized in full. Data पूरा realize हुआ, तो डेटा की वैल्यू कितनी थी? 1,30,400, तो पूरा रियलाइज होगा. उसके बाद वैल्यूज गिवन अबाउट दी लैंड एंड बिल्डिंग 43,500. सो यू कैन सी दैट मोटर व्हीकल रियलाइज हो गया, स्टॉक रियलाइज हो गया, डेटा रियलाइज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग. यहां मैं एक बात आपके दिमाग में डाल लेना चाहता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उस एसेट से हम कुछ भी रियलाइज नहीं करते. ठीक है, उस एसेट से हम कुछ भी रियलाइज नहीं करते हैं, हम उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? 0. नाउ क्रेडिटर्स को हमें पेड ऑफ करना है, तो पेड ऑफ किस साइड होगा? डेबिट में. टू बैंक के अंदर सब कुछ हो रहा है, यहाँ बैंक के अंदर में मोटर व्हीकल सब कुछ है, सो उसको बैंक के हेड में ही डील करेंगे. सो क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? डिस्काउंट देने के बाद 1700 डिस्काउंट देना है. सो 97,500 हमें पेमेंट करना था, जिसमें से 1700 हमने क्या किया? डिस्काउंट दे दिया, मिल गया हमको, बाकी हमें पेमेंट करना. 8 एंड 6 में से बन गया 5, 95,800. एंड नाउ एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन एक्सपेंस का कितना अमाउंट पे करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंस का पे करना है 1250. सो दिस इज ऑल अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट. हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अब हम और ऐड और लेस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. और अगर प्रॉफिट होता है तो इट विल बी राइट डाउन इन द डेबिट साइड, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि हमने एसेट्स को रियलाइज किया, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया, तो उसके बाद हमारे पास इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंस कम था, तो उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे? ए और बी यानी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड रेशियो है 3/5, और कैलकुलेशन के बाद द प्रॉफिट विल बी 19,850. आप इसको डिवाइड करिए 3:5 में, तो ये आ जाएगा and it will be a
11,190 for A, 7,460 for B. So this is all about the preparation of the realization account of the question number 4. And after preparation of the realization account, now we will move to the preparation of partners capital account. इसका टोटल आपको फाइंड आउट करना है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है आपको कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि देयर आर ओनली टू पार्टनर एक्स ए एंड बी। Firstly, we write down the opening capital, which is given in the balance sheet. Opening capital of A is 85,000, whereas for B 63,000. And after that, you know very well, the profit on realization will be 11,190, and for B 7,460. So realization account से हमारा profit आया है A के लिए 11,190, 7,460. एंड नाउ हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व है ना एसेट साइड में कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है जिसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिसोल्यूशन का केस है कि हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का पेमेंट कर देंगे क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम उनका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है। तो उनको पेमेंट कितना करना है, 96,190 ए को पे करना है, 96,910 सॉरी फॉर दैट 96,910 हमें पे करना है, किसको, ए को पे करना है। वेयर एज यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो ये हुई थी कि जब हम लोगों ने रियलाइजेशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था 19,180 को 19,850 को, so distribution between A and B is 10,910 and 7,940. So इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, extremely sorry for that, 10,090 7,940. अब हम पेमेंट करेंगे, so 96,910 और इधर आ जाएगा 70,940. So this is a final payment to the A and B on the dissolution of partnership firm. अब इसके बाद क्या करना है सर, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ विल प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। और इस क्वेश्चन में जो बैंक अकाउंट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म व्हेन वी प्रिपेयर द बैंक अकाउंट द टोटल ऑफ द बैंक अकाउंट मस्ट बी इक्वल, मतलब बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ही इक्वल आएगा। सो उसको बना के देख लेते हैं हम लोग। जब हम बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज 13,650 which is given in the asset side of the balance sheet. And after that रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए या इसको आप लोग थोड़ा इजी समझ लीजिए कि जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है या पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया हुआ है तो इन दोनों की हेल्प से आप बैंक अकाउंट आराम से एकदम चुटकी में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, सबसे पहले कि बैंक अकाउंट विल बी राइट ऑफ ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, तो जस्ट इसके अपोजिट में जाइए और लिखिए बाय रियलाइजेशन कि बैंक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में है तो उसकी पोस्टिंग जो है बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। किस नाम से होगी, रियलाइजेशन के नाम से होगी। अमाउंट क्या होगा, 95,800 क्रेडिटर्स के नाम से होगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से 1250। आप ये दोनों वैल्यू ऐड करके भी लिख सकते हैं, आपको ये अंदर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो 97,050 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओके, दोनों को ऐड करके। अब इधर आइए डेबिट साइड में, तो डेबिट क्रेडिट साइड में आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड का पोस्टिंग किधर होगा, डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट को, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए आप
16,950, 77,600, 113,200, 43,500। आप इन चारों को अलग अलग भी यहां लिख सकते हैं या चाहे तो एक साथ भी ले सकते हैं। सो मोटर व्हीकल से आपका कितना है 16,950, 77,600 आपका है स्टॉक से, डेटर से रियलाइज हुआ 1,13,200, whereas the land and building से आपका रियलाइज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग से आपका रियलाइज हुआ है 43,500। एंड ये हो गया आपका पोस्टिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सो इट इज वेरी इजी, यू कैन सी दैट। और जब हम अब आपने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक का हम लोगों ने सारा पोस्टिंग कर दिया, डेबिट का क्रेडिट में किया, क्रेडिट का डेबिट में। सिमिलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जब हम रियलाइजेशन बैंक अकाउंट बनाएंगे तो भी हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर बैंक इधर साइड प्लेसमेंट नहीं, क्रेडिट में ही हुआ, इधर हुआ है डेबिट में, तो डेबिट की पोस्टिंग हमेशा किस साइड होगी, अपोजिट, क्रेडिट में। किस नाम से होगी, पार्टनर्स के नेम से होगी। जैसे एस कैपिटल, एस को कितना पेमेंट किया 96,912 और बी को कैसे पेमेंट किया 79,950। सो यू कैन सी दैट how we will prepare the bank account with the help of partners capital account and realization। अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, बैंक अकाउंट इज जस्ट लाइक अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये हमारी एसेट्स में शो होती है तो हम रियल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जब पैसा आएगा डेबिट में, जब पैसा जाएगा क्रेडिट में। तो यू कैन सी दैट जब हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए इसे हम कहां लिखेंगे, बैंक अकाउंट में, क्रेडिट। उसी तरह से जब हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो पैसा आएगा तो कहां लिखना चाहिए, डेबिट में लिखना चाहिए। सिमिलरली ए और बी को अगर हम क्या करेंगे, पे कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो पैसा जाएगा ही जाएगा, तो क्रेडिट हम लोगों ने कहां लिखा, क्रेडिट में। सो आप इस तरह से समझ के भी पोस्ट कर सकते हैं इन द बैंक अकाउंट, या फिर आप क्रॉस करके अगर डेबिट में तो क्रेडिट में, क्रेडिट में तो डेबिट में होगा फ्रॉम द रिलेशन अकाउंट, फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू द बैंक। And after that we will total and we find out the total of the bank account in the debit side is 2,64,200, whereas in the credit side 2,64,900. So this is a simple explanation of the question number 4, and with the help of the question number 4 we prepare realization account, partners capital account and bank account. So please note down this question in your copy properly, and thereafter we will move to the next question. So after completing the question number 4, let's we move to the next question, which are related to the passing and journal entry on the dissolution of the partnership firm. And the question is question number 9A. Preetham Naresh decided to dissolve their firm on 30 September 2018, and the balance sheet is to that follows. And you can see that the capital of Preetham and Naresh 40,000, 20,000, whereas the loan account is also given in this question is Naresh. Naresh is a partner, so Naresh loan account is 40,000, whereas the Mrs. Preetham, it means Preetham's wife loan will be of 10,000, and credit 26,000, outstanding rent 500, cash at bank 400, stock, bills receivable, debtors, provision, furniture, plant and machinery, goodwill, and prepaid insurance, plant and machinery. The assets were realized, creditors were paid off. Preetham's agreed to pay wife loan. Preetham ने agree किया कि वो अपनी wife का लोन लेगा. नरेश agreed to pay outstanding rent. नरेश ने agree हुआ कि वो outstanding rent पे होगा, और expense on dissolution will be 800. और कोई information नहीं है, so we assume that कि firm ने pay किया होगा. और Preetham and Naresh share profit and loss in the ratio of their capital. So Preetham Naresh का profit sharing ratio उनके capital के base पे होगा, और capital ratio you know very well 4:2, that is in 2:1. Prepare journal, realization account, capital account and bank account. So इस क्वेश्चन में हम सिर्फ जर्नल बनाएंगे, and it is your homework to prepare the realization account, partners capital account and bank account. Okay.
So let's we start the journal entry of the question number 9A. So in the question number 9A, firstly you know very well, we transferred all the assets except cash in hand, cash in bank and fictitious assets to the and accumulated losses also to the realization account. So पहले हम realization account में transfer कर दें. So the increase will be realization account debit to stock to bills receivable to debtor to furniture to plant and machinery to goodwill. You know very well, if goodwill shown in the asset side of the balance sheet, it will be treated as an assets. उसे हम assets की treat करते हैं. And prepaid insurance. Prepaid insurance. So the value is 21,500 of the stock. Bills receivable will be 8,800. Debtor 45,000. Furniture 3,000. Plant and machinery 23,000. Goodwill 20,000. And prepaid insurance is 300. Okay. So second entry will be, you know very well, if any provision created against the assets. अगर हमने कोई प्रोविजन क्रिएट किया है एसेट्स के अगेंस्ट, जैसे ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया है, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दैट इज 1500 as well as a lots of the liabilities like external liabilities. External liabilities like Mrs. Preetham's loan, because Mrs. Preetham is Preetham's wife and Preetham is a partner. So partners की वाइफ के लोन को हम एक्सटर्नल लोन की तरह क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं. So Mrs. Preetham's loan will be 10,000 and creditors 36,000. And outstanding rent will be 500 to realization. So you can see that पहले हम लोगों ने सारी assets को ट्रांसफर किया realization account में और फिर provisions को and external liabilities like Mrs. Preetham's loan, creditors account and outstanding rent. After transferring those things, now we will realize the third journal entry will be realization of the assets. So realization will be depend upon, you know very well, the entry will be bank account debit to realization. जब हम assets को realize करते हैं in bank, तो क्या होती है? बैंक टू realization. अब बैंक में क्या क्या realize हुआ ये भी देख लेते हैं. सबसे पहले stock 20,000. बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हुआ है 3,800. फर्नीचर रियलाइज हुआ है 5,100. प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुआ है 35,000 और डेटर रियलाइज हुआ है एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. डेटर की वैल्यू कितनी है? 45,000. 45,000 में जब आप 10% यानी 4,500 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 40,500. सो दिस इज इन रियलाइजेशन ऑफ ऑल द एसेट्स. क्या क्या रियलाइज हो गया? स्टॉक रियलाइज हो गया, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हो गया, फर्नीचर रियलाइज हो गया, डेटर रियलाइज हो गया, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हो गया. ये सारी चीजें हमारी रियलाइज हो गई. अब गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये क्या मान के चलेंगे कि इनका रियलाइजेशन वैल्यू अभी तक क्या है? 0. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. आगे क्या है? क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट एट 5%, यानी हमें पेमेंट करना है. सो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो जब एसेट्स रियलाइज हुआ तो बैंक टू रियलाइजेशन. जब पे हो रहा है सो कौन कौन सी वैल्यू है? क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%. क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 36,000. 36,000 में हम 5% डिस्काउंट यानी 1,800 डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 36,000 माइनस 1,800. सो 34,200. So this is an payment of the creditors.
अब नेक्स्ट अमाउंट ये लिखा हुआ है प्रीतम एग्री टू पे हिज बाइक लोन। प्रीतम ने एग्री किया कि वो अपने बाइक का लोन लेंगे। सो ये जो प्रीतम का लोन क्रेडिटर्स का पे ऑफ हो गया, प्रीतम का लोन कौन लेगा? हस्बैंड लेगा प्रीतम। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यू नो वेरी वेल व्हेन एनी liabilities take over by the partner, so the entry will be realization account debit to partners capital. Partners का name क्या है? Preetham's capital. Preetham's capital amount कितना है? 10,000, क्योंकि 10,000 का उसने अपनी बाइक का लोन लेने की तैयारी। Number 6, expense on dissolution and Naresh agreed to pay outstanding rent. Okay, प्रीतम्स लोन को हस्बैंड ने ले लिया और आउटस्टैंडिंग रेंट को किसने लिया? नरेश ने। उसकी भी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश। नरेश क्योंकि नरेश ने कहा कि हम आउटस्टैंडिंग रेंट देते हैं, क्योंकि आपको याद करना है जब कोई लायबिलिटी पार्टनर ले लेता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, एसेट्स ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ओके, ये होगी नंबर 6 एंट्री। आप चाहें तो दोनों कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही लायबिलिटी टेक ओवर हुई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंस ऑन रियल डिसोल्यूशन केम टू 800। अब एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन कितना आया है? 800। जब कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो उसकी भी क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट है? 800। सो इट इज ऑल अबाउट द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट और हमने सब कुछ बना लिया। ठीक है, सो नोट डाउन। So after completing all the journal entry, let's we discuss the total of the amount, and the total is, as you can see that 21,500 plus 8,800 plus 45,000 plus 3,000 plus 23,000 plus 20,000 and plus 300. So this the total is 1,21,600. And if we are talking about the total of the credit side of the realization account, so you can see that 1,500, 10,000, 36,000, 10,000, 36,500, and the value is 48,000. Now the total of the reduction of the assets is 20,000, 3,800, 5,100, 35,000, 40,500, 1,04,000, 4,000. And this is all about the total. And now we have to compute the प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे कि लॉस हुआ। तो कैसे करेंगे आप देख लो रफ में, डेबिट और क्रेडिट करके। डेबिट का टोटल है 1,26,600 रियलाइजेशन का, यहाँ क्रेडिट का है 48,000, यहाँ रियलाइजेशन का क्रेडिट का है 1,04,400 और यहाँ डेबिट का है 34,200 और यहाँ डेबिट का है 10,000, यहाँ पे भी डेबिट का है 500 और यहाँ पे भी डेबिट का है 800। तो आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट में कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल कितना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना होगा। सो अब टोटल फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ सफिशिएंट डाटा 1,21,600 एंड 34,200, 10,500 and 800. Value is 1,67,100. Credit में 48,000 and 1,04,400. 1,52,400. Our difference निकालें 1,67,100. So we find out 14,700 was the loss on the realization. And you can see that आंसर भी यही है 14,700 क्योंकि क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा। सो इट्स अ लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड यू नो वेरी वेल जब भी रियलाइजेशन में लॉस होता है तो हम क्या करते हैं एंट्री नंबर 8
आस्क करते हैं लॉस का। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स विल बी प्रीतम एंड नरेश। सो प्रीतम्स कैपिटल, नरेश कैपिटल टू रियलाइजेशन एंड लॉस विल बी 14,700 and the PSR will be, as you know very well, capital ratio 2:1. So 2/3 1. So the distribution is 4,900 9,800. Okay, so please note down all the entries which are related to the question number 9A, but it is not completed. So your homework is to prepare the realization account, capital account and bank account of this question and send the solution to me. And if you have any doubt, so please ask me in online classes. Okay, so क्योंकि अभी ये एंट्रीज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम लोगों ने सिर्फ एंट्रीज कंप्लीट की रियलाइजेशन तक। उसके बाद हम पार्टनर्स को पूरा पेमेंट करेंगे, नरेश के लोन को पेमेंट करेंगे, क्योंकि नरेश का यहाँ जो लोन है 14,000 उसको हमें पूरा पे करना है। तो एक एंट्री तो ऑलरेडी हमारे पास पता है, वो है 9 एंट्री नरेश लोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो हमें पे करना ही करना है नरेश के लोन को, क्योंकि नरेश एक आउटसाइडर है, तो उसका लोन हम लोग पहले पे करेंगे। और उसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनली बैंक पार्टनर्स को कितना सेटल करना है, पार्टनर्स को सेटल करना है कि पार्टनर्स से लेना है। सो उसके लिए भी हम लोग फाइनली एंट्री पास करेंगे प्रीतम्स कैपिटल डेबिट, नरेश कैपिटल डेबिट टू बैंक। लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारे कैपिटल अकाउंट में, तो हमें रफ में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो कैपिटल अकाउंट पूछा हुआ है, तो आपको बनाना तो पड़ेगा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 9A एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।